व्यक्तिगत कारण है, मेरे राजनीतिक कारण है, और एक स्वतंत्र देश में कोई भी राजनीतिविद कोई भी निर्णय ले सकता है अपने राजनीतिक जीवन में। इससे ज़्यादा कारण को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब नया आपका राजनीतिक सफर किधर शुरू होगा? तो आपने नेता शर्मा से मुलाकात की, तो क्या आप लग रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, मेरी राजनीति आसाम में है। मैं बंगाल की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर लोग ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो मैं बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, पर मेरे राजनीतिक जीवन में जितनी समझ है, मुझे तो आसाम में ही काम करना है, तो उसको सामने रखकर मैंने ये निर्णय लिया है। आगामी समय में आपको बीजेपी में देखेंगे? आपके देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, और मैं अभी किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही इस्तीफा दिया है। ठीक है ना? तो मैं कौन से पार्टी में जाऊँगी तो पार्टी इसका डिसीजन है, मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ? लेकिन आपने ऐसे समय पे इस्तीफा दिया है जब एक तरह से टीएमसी से इस्तीफों का दौर चल रहा है और उन सब लोगों को सबसे अपॉर्चुनिस्ट करार दे रही है जो अपनी टीएमसी की का नेतृत्व है, टीएमसी के नेता है, तो आपको भी उसी नज़र से देखा जा रहा है। देखिए, कौन अपॉर्चुनिस्ट है कौन नहीं है, ये राजनीति में किसी को ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आज आप किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसी सिचुएशन में हो सकते हैं। स्टालिन जी का देखिए ना क्या हाल हुआ आज। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ? सो देयर इज नथिंग एज अपॉर्चुनिस्टिक इन पॉलिटिक्स। কারণ আমরা তো এখানে তৃণমূল কংগ্রেস, আমরা তো মিশে যাচ্ছি না, কিন্তু আমরা রয়েছি তো তৃণমূল কংগ্রেস। মানে আমি এখন সংখ্যাটা, এখন এগুলো তো সেপারেট চিঠি করতে হবে, করব। সংখ্যাটা 64 পেরিয়ে গেছে, কালকে বলবো হয়তো 65, কাল যখন সেই এমএলএ আসবেন তখন বলবো 65। স্বাভাবিকভাবে আমরাই তো তৃণমূল, কে কোথায় কার সঙ্গে দেখা করলো আমরা কি বলবো? মিশে যায় কংগ্রেস আর তৃণমূল, তখন কি হবে? আমরা মিশছি না, আমরা কংগ্রেসের সাথে মিশছি না, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। আমাদের পরিষদীয় দল, আমরা এবং আমি এমপিদের যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারাও কংগ্রেসের সঙ্গে মিশছেন না, এটাও আমি তাদেরটা তারা বলবেন, কিন্তু এটা আমি শুনেছি তারাও মিশছেন না। তো সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি কংগ্রেসের সাথে মিশছেন না, সংখ্যাগরিষ্ঠ এমএলএ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানে কি এখন তো সংখ্যাটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, তারাও মিশছেন না। এরপরে হচ্ছে জেলা পরিষদও তো বহু জায়গায় তারা যারা আছেন অনেকের সাথে কথা হলো, কেউ মিশছেন না, মিউনিসিপ্যালিটি কেউ মিশবে না। তাহলে কংগ্রেসের সাথে মেশার প্রশ্নটা উঠছে কোথায়? এই ইন্ডিভিজুয়ালি কি করেছেন সে নিয়ে বড় তথাকথিত জোট, ইন্ডিয়া জোট, যেটার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই, তারাও আর ডাকবে না, কারণ সঙ্গে তো কেউ নেই, সবাই তো চলে গেছে। যারা জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনোদিন অপ্রাসঙ্গিক হতে দেয়নি, নিজেদের ঘাম রক্ত দিয়ে দেওয়ালে ঘাস ফুলে গেছে, তারাই তো নেই। কাকে নিয়ে দল? আর এর আগে তো উনি সবসময় বৈঠকে যেতেন না, এমনকি গান্ধী পরিবারের অস্তিত্বকে, তাদের কর্তৃত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি খাড়গেজির নাম পর্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, কোনোদিন জয়েন্ট প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থাকেননি। তো হঠাৎ আজকে বেলা শেষে প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে এই জোটের বৈঠকে উপস্থিতি কেন? এটা কি মানুষ বোঝে না? না, এটা ইন্ডিয়া জোটের দু একজন সিরিয়াস যারা মেম্বার আছেন তারা বোঝেন না, সবাই সবকিছু। এরপরে এরা প্রতীকের দাবি করবে, এরপরে এরা বলবে আমরাই আসল তৃণমূল। তো এর জন্য তার বিজেপি দায়ী নয়। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এতে একেবারেই কোনো আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন না। মানুষের কাছে ওটা প্রত্যাশিত ছিল, যদিও মানুষ এই মুহূর্তে তৃণমূলকে নিয়ে খুব একটা বেশি কোনো আলোচনায় যেতে চায় না, চর্চাও যেতে চায় না, এইসব জিনিস খুব একটা বেশি দেখতেও চাইছে না মানুষ। এখন শেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন হয়ে গেছেন, তিনি তার উত্তরাধিকারী নিয়ে তিনি একদিকে এগিয়ে চলবেন, একলা চলবেন একদিকে, বাদ বাকি সবাই আলাদা। অদ্ভুত পরিস্থিতি। রাহুল গান্ধীর নিজেরই ঠিক নেই কাল কি হবে। অভিষেক ব্যানার্জি এখন অবস্থা যে খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করছেন, পার্টি চলে গেছে, পার্টির নেতারা চলে গেছেন, আইনের সামনে এখন তাদেরকে আসতে হচ্ছে, জেলে যেতে হতে পারে, তো সেই জন্য কোনোভাবে বাঁচার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আইনের সামনে তো আসতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
দেখা করলেন সোনিয়া গান্ধী এদের সঙ্গে, এখন যাকে সাইনবোর্ড বলেছিলেন তার তলায় যারা একদিন অপমান করে যাদেরকে করেছে আজ তাদের কাছে যেতে হচ্ছে। আর কংগ্রেসের এটা পরম্পরাই আছে, যারা কংগ্রেস থেকে বেরোয় পরে কংগ্রেসেই ফিরে যায়, মিলে যায়। অনেক বড় বড় হয় মিটে গেছে ভিপি সিংয়ের মতো লোকেরা, গুজরাল ইত্যাদির মতো লোকেরা, আর নাহলে শরদ পাওয়ারের মতো তারা মিলে যাচ্ছেন। তো এটাই ভবিতব্য। সে আলাদা থাকুন, একা থাকুন, একসঙ্গে থাকুন, তাতে দেশের কিছু যায় আসে না। দাদা তৃণমূলের একাধিক সাংসদ, কালকে দেখা গেল সুস্মিতা দেব ইস্তফা দিলেন, মালা রায়, সায়নী ঘোষ, যারা একেবারে কাছে তারাও বিদ্রোহী দল। ভালো, এটা মানুষের যে ম্যান্ডেট আছে না পশ্চিমবাংলায় টিএমসির বিরুদ্ধে, তো তারা বুঝতে পেরেছেন, তো মানুষের মতামত পাল্টে গেছে, তো সেই জন্য তারা জনমতের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। এবার তারা কী করবে সেটা তারা ঠিক করবে। বিধানসভাতেও দেখা যাচ্ছে যে আরও লোক যুক্ত হচ্ছে, আসবে আসবে, ওখানে থেকে কী করবে, পার্টিতেই উঠে গেছে। सुष्मिता देव जो रिजाइन किया, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये जो मॉडल है, जौहर सरकार रिजाइन किया था, सुखेंदु शेखर राय अभी रिजाइन किया है और सुष्मिता देव भी रिजाइन कर दिया। अगर पार्टी के कुछ चीज ये सहमत नहीं होता है तो वो रिजाइन कर दिया, तो बाकी एमपी लोगों को ये मॉडल फॉलो करना चाहिए। अगर जौहर सरकार इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुखेंदु शेखर राय इस्तीफा दे सकते हैं, अगर सुष्मिता देव इस्तीफा दे सकते हैं, तो आप लोग तृणमूल कांग्रेस का सिंबल में जीतकर, ममता दीदी का कैंडिडेट होके जीतकर, तो आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो भाजपा को हाथ में, स्पॉन्सर्ड बाय भाजपा का नेता का घर जा रहा है, कभी भाजपा का चीफ मिनिस्टर आपका मीटिंग में आ रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपका साथ मिल नहीं रहा है, अगर आपका सोच में पार्टी सही राह में नहीं है, तो जौहर सरकार जी तो इस्तीफा दे दिया था, ही रिजाइन। सुखेंदु शेखर राय थोड़ा लेट हुआ लेकिन रिजाइंड। सुष्मिता देव रिजाइंड। तो आप लोग एमपी से पकड़ के क्यों लेक्चर मार रहे हो? छोड़ दीजिए। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर एक वर्कर्स मीटिंग बुलाई है तृणमूल कांग्रेस का, उसका फेस कीजिए जो हम एंटी भाजपा वोट लेकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के नाते हम लोकसभा में या राज्यसभा में हम है, लोकसभा में है, तो आज हम भाजपा का दोस्ती बनाने जाना चाहता हूं। तो वो वर्कर जो लोगों है, वर्कर लोगों को वो तो वर्कर्स मीटिंग करना चाहिए, अगर हिम्मत है तो कीजिए। दादा, कांग्रेस टीएमसी का जो है मर्जर की बात हो रही है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को कोई नया पद दिया जा सकता है, इस पर देखिए, इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का वो हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है, तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन दादा, अगर बंगाल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस से हमेशा विपरीत रही है टीएमसी, खासकर चुनाव से पहले भी देखा गया। अब अगर इनके मर्जर होता भी है तो इसे कैसे देखेंगे? बंगाल की राजनीति इतना इफ्स एंड बाट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता है। अगर ये होता क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है, क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। हमारा लीडर दिल्ली में है, तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। दादा, माला राय जिसको जो है महिला जो है नेत्री बनाया गया आपके पार्टी में, शायनी घोष को युवा मोर्चा का बनाया गया लीडर, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि दोनों जो नया कैंप बन रहा है उसमें समर्थन कर सकते हैं, चिट्ठी में साइन कर सकते हैं। देखिए, अभी तो नहीं हुआ, इसीलिए अब तक हमारा कोई कमेंट नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि माला राय सामने को चले गए। देखिए,
ये तो कौन जा रहा है उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये असेंबली में जो हो रहा है ये तो एक तरफ से कुछ लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक महीना पहले ये लोग तृणमूल कांग्रेस का नॉमिनेशन से तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट होकर दीदी का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर ये बिल्डिंग में अंदर घुसा था, और आज एक महीना हुआ ये दीदी का विरोध कर रहे हैं, दीदी का लाइन से बाहर जा रहा है और भाजपा से थोड़ा इसका दिल मिल रहे हैं। तो ये पब्लिक देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। अगर दीदी आज चीफ मिनिस्टर फिर से बनता तो ये लोग दीदी का मिनिस्ट्री में जाने के लिए ये लोग लॉबी करता। तो दादा ऐसे लोगों को टिकट देना क्या गलती था? देखिए, कुछ ना कुछ को तो एक तो लोग पहचानने से कुछ तो गलती हुआ, और दूसरा आपको तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो खड़ा होने से पहले दीदी 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 और दीदी को सिंबल लेकर एक बार असेंबली में घुस जाने के बाद हम शेर है, तो वो जनता इसको विचार करेंगे। खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, ये जनता का दरबार है। आप जीते हैं किस में? तृणमूल का टिकट से। कौन वोट किया? तृणमूल वर्कर्स वोट किया। कौन वोट दिया? जो लोग ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं वो वोट दिया। अब कैसे अकेला बड़ा बड़ा बात बोल रहा है यहाँ पर? अगर हिम्मत है तो जाइए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर तृणमूल वर्कर को एक मीटिंग बुलाइए और अब बोलिए हम लोग भाजपा का साथ दोस्ती करने जा रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? ये बयान भी नहीं दिया कि हम लोग नहीं गए हैं, हमारे उसके ऊपर तो इसीलिए मेरा कोई कमेंट नहीं है अभी तक। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।